नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सुनील जाखड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਮਬੰਦ ਹੈ। ਸਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਦੇਖੋ, ਸਮਝਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਏ ਫੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਪੁੱਟ ਅ ਲੈਮ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦਾ ਫੌਕਸ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਲੇਮੈਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਰ ਆਮ ਜਟਕੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ। ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3.5 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 1,80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਟਾਵੇ। ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਦੈਟ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ।
तो आप सुन रहे थे पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ को, जिनकी तरफ से बताया गया कि किसानों के लिए क्या चीजें की जा रही है। दरअसल पंजाब के सीएम किसानों के साथ डिजिटल संवाद कर रहे थे, डिजिटल संवाद खत्म हुआ है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं जो बहुत अहम है। हरियाणा के स्कूली छात्रों के लिए यह बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा में 27 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। हरियाणा शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। 26 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान और छुट्टियों के बाद सभी स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है। कोरोना के चलते 3 महीने से स्कूल बंद है, ऐसे में 27 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हरियाणा के स्कूली छात्रों के लिए यह बड़ी खबर। हरियाणा में 27 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। 26 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। छुट्टियों के बाद सभी स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है। दरअसल कोरोना के चलते 3 महीनों से स्कूल बंद है और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि स्कूल कब खोले जाएंगे, और अब वो वक्त आ चुका है जब ये तय हो चुका है कि स्कूल खोले जाएंगे। 26 जुलाई तक छुट्टियां और 27 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ से संवाददाता अंकित दुदानी का। अंकित, स्कूल खुलने वाले हैं, 27 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। इसमें अपडेट्स हम जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी क्लासेस के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल राज, 27 जुलाई से स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं शिक्षा विभाग की ओर से, और ये आदेश जारी हुआ कि 1 से 26 तारीख तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सरकार का एक और फैसला आता है और सरकार यू टर्न लेती हुई नजर आती है और ग्रीष्म जो गर्मी का अवकाश जो घोषित किया है 1 से 26 तारीख तक, उसके ऊपर यू टर्न ले लिया। अब उसमें यह कहा गया कि मुख्यमंत्री जो दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। जो ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, एजुसेट के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई होती रहेगी। पहले कहा गया कि 1 से 26 तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी और 27 तारीख से स्कूल खुलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग फैसला लेता है और फिर उसके बाद तुरंत थोड़ी ही देर के बाद या 1-2 दिन में यू टर्न ले लेता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई जो मामले हैं उनके अंदर शिक्षा विभाग ने फैसला लिया और उसके बाद यू टर्न ले लिया। हमने जो फीस का मामला था वो देखा था। अंकित, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि जो 26 तारीख की हम बात कर रहे हैं और 27 जुलाई से स्कूल खुलेंगे, क्या ये फैसला लिया जा चुका है? इस पर यू टर्न लिया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, 27 तारीख से स्कूल जरूर खुलेंगे, ये फैसला लिया है, लेकिन 1 से 26 तारीख तक गर्मियों की छुट्टियां कर दी गई थी कि कोई पढ़ाई नहीं होगी, जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियां पहले होती थी। लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह से ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है वो चालू रहेगी 1 से 26 तक। वो गर्मियों की छुट्टियां नहीं कह सकते हम उनको अब, क्योंकि जो 1 से 26 तक छुट्टियां की बात कही गई थी वैसी पढ़ाई तो अब लगातार चल रही है। लगातार जियो टीवी के माध्यम से और एजुसेट के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो पढ़ाई बच्चों को करवाई जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, वो जारी रहेगी। ये एक यू टर्न सरकार ने लिया है। ठीक है अंकित, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि 27 जुलाई से क्या सभी क्लासेस के बच्चे स्कूल जाएंगे, यानी पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आएंगे, या फिर डिजिटल संवाद कहें या फिर डिजिटली जो पढ़ाई हो रही थी उसी तरीके से ये स्कूल खुलेंगे? स्थिति स्पष्ट करें। बिल्कुल, सरकार की ओर से जो अभी आदेश आए हैं उसमें यही आदेश आए हैं कि 27 तारीख से स्कूल जो खुलेंगे उसमें सारी कक्षाएं खुलेंगी और जो 1 अगस्त से हैं उससे कॉलेज और भी खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने आप में विरोधाभास है, जो फैसले हैं उसके अंदर विरोधाभास है। अभी क्लियर नहीं है क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं, अभी बात नहीं हो पाई शिक्षा मंत्री से। जैसे ही शिक्षा मंत्री से बात होगी तो ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने लगातार कहा था कि बड़ी क्लासें जो 10th 11th 12th क्लास है वो केवल बुलाई जाएगी स्कूलों के अंदर, औरों की अभी घर से ही परीक्षा जारी रहे, वो घर से ही जो पढ़ाई है वो जारी रहेगी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो फैसला जो होता है, जो आदेश आता है सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं क्लियरिटी अभी भी नहीं है। जी चलिए, तो हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि जो एक लाइन लगातार हम चला रहे हैं कि 26 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां हैं, वो गर्मियों की छुट्टियां नहीं है। इस दौरान भी आपकी क्लासेस लगती रहेंगी। जो डिजिटली अब तक क्लासेस लग रही थी तो उसे आप गर्मियों की छुट्टियां कंसीडर ना करें, और पहले ही आदेश था, इसीलिए हमारी स्क्रीन पर आपको लगातार ये लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर सरकार की तरफ से यूटर्न लिया गया। ये लाइन 26 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान, तो इस पर यूटर्न सरकार ने ले लिया है और 27 जुलाई से स्कूल जरूर खुलेंगे। लेकिन इस पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि 10वीं 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वही स्कूल्स में पहुंचेंगे या फिर
जो फर्स्ट से लेकर 12th तक के बच्चे हैं वो स्कूल में पहुंचेंगे। और जो बात 1 अगस्त की है, 1 अगस्त के लिए जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्हें खोलने पर बातचीत हुई है। बहरहाल अभी के लिए बड़ी अपडेट ये कि 27 जुलाई से स्कूल्स खुलेंगे। अब उन स्कूल्स में बड़ी कक्षाएं यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चे ही स्कूल जाते हुए नजर आएंगे या फिर पहली से लेकर 12वीं तक के, इस पर हमें नजर बनाए रखनी होगी और अपडेट हम इस बाबत आपको देंगे जब शिक्षा मंत्री से बातचीत होगी, शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई जानकारी या सीएम की तरफ से कोई जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन एक बात साफ है कि 26 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का जो ऐलान था उस पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। और अब एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने उठाए सरकार के फैसले पर सवाल। सैलजा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा, सरकार विधानसभा का सेशन बुला नहीं रही। जी हां, ये कहा गया है और स्कूल खोलने के लिए तैयार है। जी हां, एक तरफ सरकार विधानसभा का सेशन नहीं बुला रही और दूसरी तरफ स्कूल खोलने के लिए तैयार है। तो कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं हरियाणा में, वो सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही हैं। सरकार को विधायकों की चिंता, मासूमों की नहीं। यहां से ये मैसेज भी सरकार को देने की कोशिश है। सरकार पर तल्ख टिप्पणी की आप किसी कोशिश कह लें, तमाम चीजें दिखाई दे रही है। बहरहाल सैलजा सीधे तौर पर सरकार को घेरती हुई। सरकार का निर्देश है कि 31 जुलाई तक स्कूल बंद रहें, लेकिन हरियाणा सरकार ने आज आदेश दिया है कि 27 जुलाई को स्कूल खुलेंगे। आप खुद तो विधानसभा का सत्र बुला नहीं पा रहे हैं, अपनी सेहत की इतनी चिंता है और हमारे मासूम बच्चों की सेहत की आपको बिल्कुल चिंता नहीं। फतेहाबाद में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इससे ज्यादा भयानक तस्वीर और क्या हो सकती है। हत्या की घटना पर मृतक के परिजन भड़के हैं, जो लाजमी भी गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी होता हुआ। मामले में 7 लोग आरोपी, सभी फरार। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए जहां पर लाठी डंडों के साथ कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख लें जहां पर लाठियों के साथ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। हत्या की घटना पर मृतक के परिजन भी भड़के हैं। कुछ ऑडियो भी इस दौरान सुनाई दे रही है, वो जरा सुन लेते हैं। हाँ, जो ये है अभी रोहतक से डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के यहाँ पहुंचे हैं। तो परिजनों के अंदर इस बात का रोष था कि भी अक्यूज अरेस्ट नहीं है। हमने इनको आश्वस्त किया कि जितने भी अक्यूज है उसके अंदर सभी को जल्दी वारदात कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो, बदमाश कितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन इंसाफ जरूर होता है, या फिर कहें कि सच्चाई जीतती है। कानून की हत्या करने वालों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। यह रिपोर्ट आप जरा देखिए। सड़क पर यह खून खाकी के रखवालों का बहा है, लेकिन कहते हैं बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है और हर गुनहगार को उसके किए की सजा जरूर मिलती है। गोहाना में जिन पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, पुलिस ने उनके गुनहगारों से अपराध का बदला लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के अंदर जो विकास था वो वहां से भागने में कामयाब हुआ, जबकि जो मेन एक्यूज्ड जिसने हमारे मुलाजमों की हत्या की थी, जो मेन एक्यूज था वो अमित जवाबी कार्रवाई के अंदर उसको जब उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया और उसने फिर भी पुलिस के ऊपर अटैक किया, उस जवाबी कार्रवाई में उसको गोलियां लगी और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जब उसका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, उसी दौरान उसकी मृत्यु हुई। दरअसल गोहाना में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और छुपने के लिए जींद पहुंचे, जहां पुलिस को उनकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंची। लेकिन इसी दौरान आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी मारा गया, एक को काबू किया गया, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। लेकिन दुख की बात ये कि यहाँ भी 2 इंस्पेक्टर और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
पूरे घटनाक्रम को के जो आरोपी हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। अभी क्योंकि केस अभी अनुसंधान अधीन है तो पूरे डिटेल्स अभी साझे करने पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बाकी भी जो मुजरिम इसमें बचे हुए हैं हमारी कोशिश है कि उनको भी जल्दी हम अरेस्ट। रास्ता गलत हो तो उसकी मंजिल कभी सही नहीं हो सकती। खाकी के रखवालों को जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया वो आरोपी अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब पीने से रोकने पर बदमाशों ने दोनों पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। जींद रोड बुटाना क्षेत्र में आए, यहाँ पे इन्होंने गाड़ी के अंदर शराब का सेवन किया और इसी दौरान हमारी जब राइडर 41 के ऊपर इनको रोका टोकी की गई तो अमित और इसके साथियों द्वारा हमारे जो जवान थे उनके ऊपर अटैक किया गया। उम्मीद है पुलिस वारदात में शामिल अन्य 4 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करेगी और मारे गए पुलिसकर्मियों के परिजनों को इंसाफ मिलेगा। सोनीपत से नितिन अंतिल और जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। चीन के खिलाफ भारत सरकार का क्या बड़ा फैसला है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चीन के खिलाफ भारत सरकार का बड़ा फैसला, क्या है वो बड़ा फैसला, बताते हैं आपको। बड़ी खबर, अब हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को ठेका नहीं। जी हां, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। चीन की कंपनियों को काम नहीं देंगे, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स में भी चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी नहीं होगी। तो लगातार हर मोर्चे पर चीन के साथ आप कह सकते हैं कि रिश्ते तोड़ने की कोशिश होती हुई, या फिर कह लीजिए कि चीन को झटके देने की कोशिश होती हुई सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से यह जानकारी दी गई। चीन की कंपनियों को काम नहीं दिया जाएगा, यहां तक कि ज्वाइंट प्रोडक्शन में भी चीनी कंपनियों का सहारा साथ नहीं लिया जाएगा। यह बड़ी और अहम जानकारी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एप्स पर पाबंदी लगा दी गई, 59 एप्स को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो बिजनेसेस है उन्हें लेकर भी लगातार नए नए फैसले हो रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट देने को लेकर जो चीनी कंपनियों को लगातार काम दिया जाता था, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स तक में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी नहीं होगी। तो एक के बाद एक झटके चीन को हिंदुस्तान देता हुआ। इतना ही नहीं, टेलीकॉम सेक्टर में भी चीन को झटका। बीएसएनएल, एमटीएनएल ने रद्द किया अपना 4G टेंडर। चीनी कंपनियों से नहीं खरीदे जाएंगे उपकरण, नए सिरे से जारी होंगे बीएसएनएल, एमटीएनएल के टेंडर। अब मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर होगा। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, टेलीकॉम सेक्टर में भी चीन को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी। बीएसएनएल, एमटीएनएल ने रद्द किया करार। चीनी कंपनियों से नहीं खरीदे जाएंगे उपकरण, 4G को लेकर ये तमाम चीजें, और नए सिरे से जारी होंगे बीएसएनएल, एमटीएनएल के टेंडर। हिमाचल में भी चीन को झटका लगेगा। सरकारी खरीद में चीनी उत्पादों पर बैन की तैयारी है। सीएम जयराम ठाकुर ने विचार करने की बात कही है। चीनी कृषि उपकरणों पर पहले ही रोक लगा चुके हैं और अब दूसरी तरफ सरकारी खरीद में चीनी उत्पादों पर बैन की तैयारी। जी हां, लगातार यह सवाल उठता था कि आम लोगों से यह बात की जाती है कि आप चीनी प्रोडक्ट्स को खरीदें ना, लेकिन यह सवाल जरूर लोगों की तरफ से उठाया जाता था कि सरकार कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि चीन की जो चीजें हैं वही हिंदुस्तान में ना आए। अब हिमाचल में भी चीन को झटका लगेगा। सरकारी खरीद में चीनी उत्पादों पर बैन की तैयारी है। सीएम जयराम ठाकुर ने विचार करने की बात कही है। चीनी कृषि उपकरणों पर पहले ही रोक लगा चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें। चीन पर लगातार एक के बाद एक अलग अलग तरह से अटैक करता हुआ हिंदुस्तान, और न सिर्फ आप कह सकते हैं कि सैन्य नीति के तहत बल्कि अर्थनीति के तहत भी हिंदुस्तान का चीन पर प्रहार। चाइना का प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे भारत रोकने के मन में है और हिमाचल उसमें साथ में है, और हम कोशिश करेंगे जितने भी इस प्रकार के चाइना के प्रोडक्ट हैं जितना जल्दी उनको हम मार्केट से जो है उनको रोक लगा करके कम करें, उनका
परचेज करने के लिए एक माहौल बनाने की भी आवश्यकता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के निश्चित रूप से बात कर लेते हैं कोरोना की। हरियाणा के लिए जून का महीना किसी बुरे सपने से कम नहीं। जून महीने में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब जुलाई बेशक शुरू हो चुका हो, लेकिन कोरोना का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ा है। जून में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जुलाई में पूरे चरम पर होगा कोरोना। हरियाणा में हर दिन हो रहा विस्फोट। जानलेवा कोरोना पर काबू कब? जून का महीना बीत गया, लेकिन हर दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कोरोना काल में दांव पर लगाकर जिंदगी की गाड़ी तो फिर से दौड़ पड़ी है, लेकिन कोरोना के आंकड़े बेहद ही डरावने हैं। हरियाणा में तो जून महीने में कोरोना ने जमकर तांडव मचाया। सिर्फ जून महीने में कोरोना के 12,192 केस सामने आए। हालांकि 8,917 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी, लेकिन 215 लोगों को इस जानलेवा बीमारी से जान गंवानी पड़ी। पूरा आंकड़ा भी आपको समझाते हैं। 1 जून तक हरियाणा में कोरोना के 2,356 केस आए, लेकिन 15 जून तक यह आंकड़ा 3 गुना बढ़ गया और कुल 7,722 लोग इसकी जद में आए। जबकि 30 जून तक कोरोना के 14,548 केस सामने आए। मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। 1 जून तक हरियाणा में 21 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 जून आते आते 100 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 30 जून तक 236 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। यह तो सिर्फ जून का आंकड़ा है। न्यूज 18 से बातचीत में चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम के मुताबिक जुलाई में कोरोना अपने पूरे चरम पर होगा। ये तो ऐसे लगता है कि अभी भी पीक पे ही है और जुलाई में भी पीक पे रहेगा। ये सारे जो है एस्टीमेट है, इसको 100% ट्रूली कहना तो मुश्किल है, पर जो ट्रेंड है जो सैंपल से और उससे अभी लगता है कि जैसे जुलाई में भी पीक पे रहेगा। अगस्त में हमें तो संभावना लगती है जो नंबर है उस पर कहीं ना कहीं डेंटिंग उसकी हो जाए। पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि जब तक कोरोना का इलाज नहीं मिल जाता, हमें कोरोना के साथ जीना होगा। यानी कोरोना के खतरे के बीच सावधानी बेहद जरूरी है। खासकर जुलाई महीने में आपको सतर्क रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।